ओके सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार के युवाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। ये बात सबको पता है कि बिहार के युवा जो हैं वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा रखते हैं। इसके बावजूद बिहार में एक भी सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि हमारे लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में एक सॉफ्टवेयर STPI जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के योजना के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर समस्तीपुर में बनाया जाए। इससे बिहार के युवाओं की दो समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले एक जो बिहार में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बिहार के युवा हैं वो पढ़ाई पूरी करके बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसकी समस्या का भी समाधान होगा। साथ में बिहार के युवा जो पलायन करते हैं उसका भी समाधान होगा और बिहार के युवाओं को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्टार्टअप में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य यादव। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अध्यक्ष महोदय, बदायूं जनपद के अंदर 500 से अधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां पे घनी आबादी है। आबादी के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बदायूं को बरेली से मुरादाबाद तथा शाहजहांपुर, आगरा और फरक्काबाद के मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए एक आउटर रिंग रोड को अगर हम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो इससे एक्सीडेंट होने की भी समस्या खत्म होगी और इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हम लोगों को एक बदायूं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही मैं बदायूं की तरफ से अध्यक्ष महोदय आपका और सभी मेंबर का होली के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं। धन्यवाद। एस जमीर। I want to raise the forgotten volunteers. That is a village card which was conquered by the External Ministry in 1957. And presently, they are to guide the invaders and the intruders. Now they are covering up 120 villages in the border Myanmar, Indo-Myanmar village, which is covering 6 districts: Mon, Tuinsang, Milurit, Kifri, Nolak, and Longlen. Now, sir, they are neglected by the state government as well as by the Minister of the Home Affairs. They are getting only 3,000 rupees per salary per month and 100 rupees for the clothing allowances annually and 60 rupees per month for the rations. So I'd like to request through your table that if that case can be looked into the matter. And secondly, about our international Act East policy, the international trade center, which is located now, these village cards are carting all these areas. So instead of making the boundary, the 10 kilometers restriction of the free movement regime, if the home guard can be facilitated and they can given the full facilities, and if the construction of the international wall can be avoided. Thank you, sir. Sir, thank you very much. Sir, I wish to submit a very serious situation arises in the higher education sector of the country. Sir, really, higher education sector is really ruining day by day, sir, because of the wrong policies. Recent circular from the University Grant Commission has raised concern regarding its potential negative impact on the autonomy and quality of higher education in India, sir. Here, another concern is that potential threat to academic freedom, as the circular could limit teachers and researchers in exploring the debate ideas if it dictate content and syllabi of ideological narratives. So this is a very serious kind of thing, sir. This regulatory bodies, we all know, sir, regulatory bodies have to play a pivotal role in purifying the system. Instead of doing that, sir, it is polluting. It's a very sad thing, sir. I humbly appeal to the government to come forward for the rescue of the higher education sector in this country, sir. Thank you very much. नरेश उत्तम पटेल। आपका माध्यम से सरकार का ध्यान फतेहपुर जनपद में 18 गांव में भाट जाति जो विमुक्त जाति है उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। थैंक यू। मानवर ये सब भीख मांग करके जी रहे हैं। ओके। लेकिन 18 गांव के
हमारे जनपद के जो भी भाट जात के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति या किसी भी श्रेणी में मानवर उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। मेरे पास एक स्टूडेंट जो टॉपर था वो परसों मिला और उसने कहा कि मैं लेखपाल की परीक्षा मैंने पास की है लेकिन मुझे आरक्षण की किसी श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिला। आज किसान बड़ी मुश्किल में है, उनके फसलों की खरीदारी एमएसपी पे नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा किसान सोयाबीन उगाते हैं। सरकार सिर्फ एकड़ का 5 क्विंटल सोयाबीन खरीदती है और कुल मिला के एक किसान से 20 क्विंटल तक खरीदारी सीमित रखती है। ज्यादा फसल उगाने वाले किसान पे अन्याय है और इसके साथ खरीदी भी टाइम बहुत जल्दी खत्म होता है। इस वजह से बहुत सारे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा कुंटल सोयाबीन उगाया जाता है लेकिन इसमें सिर्फ 20 लाख से कम कुंटल सोयाबीन खरीदी हुई है। इसका मतलब यही है कि 90% से ज्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। मार्केट रेट सोयाबीन का 3-3.5 हजार रुपए है, एमएसपी का रेट करीबन 4,900 रुपए है। सर एक ही मिनट, मेरा मांग यही है कि हमारे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे सोयाबीन बाकी पड़ी हुए वो सरकार खरीदना चाहिए और उसके साथ एंड इन द फ्यूचर such restrictions on procurement of crops under MSP should not be put so that all farmers can avail the benefit of MSP. Thank you. सुधीर गुप्ता। अध्यक्ष जी, मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए अनुमति दी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के लाखों कृषकों की ओर से मोदी सरकार व मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में लगातार विकास हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 125 से अधिक प्रकार की नियमित फसलें, बागवानी फसलें, औषधि फसलों का उत्पादन होता है। क्या मंदसौर संसदीय क्षेत्र को कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि उत्पाद निर्यात वृद्धि हेतु केंद्र, कृषि शिक्षा के केंद्र और कृषि उत्पाद प्रोसेस हेतु उद्योगों के विकास के हेतु विशेष ध्यान देते हुए चयन करेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तनुज पुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया शून्यकाल में। माइक। बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। मैं आज आपके माध्यम से आयुष्मान भारत जो योजना है सरकार की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, उसमें जो कमियां आ रही हैं उसका आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो समस्या का सुझाव भी मैं कुछ देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में पिछले 2-3 महीने से नए आयुष्मान भारत नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले लगभग 1 साल तक 6 यूनिट से ज्यादा जिनके राशन कार्ड में नाम थे उन्हीं के कार्ड बन रहे थे। तो कम वालों के भी बनने चाहिए और दोबारा इसको साइट खुलना चाहिए। और दूसरी बात है सर, कई बार आयुष्मान भारत कार्ड लेकर के